Bismillahirrahmanirrahim. Start in the name of Allah, who is the most merciful, beneficent, and King of Kings. My respectable judges and my class fellows, Assalamu alaikum. Today we are present here to present a presentation in front of you. We want to tell you something about oxygenation. It is our presentation, or we have distributed our topic with each other, and we will explain it also in front of you, or we hope that inshallah you will understand our presentation, whatever we have prepared for you or for ourselves as well. Here we are 9 members, okay, and I would like to also introduce my members one by one. First of all, I would like to introduce myself. My name is Mohammad Bilal, son of Mohammad Yaqub, from first semester, and the second member of my group is Saeed Khan, Haider Ali, Naveed Khan, Jafar, and Farhan Khan, Yunus Khan, Yasin Khan, Maas Khan, and Saqib Khan. We will will present our topic in front of you. So first of all, I would like to start my presentation. I would like to tell you the objectives which we have in our presentation, and these objectives will help you to understand the topic in the presentation which we have here. The first objective which we have defined, normal mechanism of oxygenation, means we will tell you the process of oxygenation, and also with it that we will tell you the respiratory and cardiovascular system, how the respiration works with cardiovascular system. We have this object also. This object will also explain, we will explain something here, and then the second objection I want to tell them all of them one by one. We will identify the factors, how the respiration faces some factors. We will tell you also the factors here, and then the like effective oxygenation of body tissues, how the respiration affect the bodies, okay. We will also explain and discuss lifespan related changes and problems in the respiratory system. We usually face many problems in respiratory system, so we would like to tell you also here what are the problems, why do we face problems during respiration, why do patients face this problem here. So we will also define it, okay. The fourth one is describe nursing measures to ensure a patient airway. Being a nurse, it is our responsibility to ensure a patient, if a patient has this problem, to inhale, breathe, and exhale, breathe. Also, many patients have this problem. We will also tell you what are the problems and how can we ensure a patient properly. The last one, apply nursing process. As we know that we are learning here, or it is our vital role that we have to ensure a patient, and we have to also tell them about the teaching and about the process by which he can save himself. And respiratory function and cardiovascular functions, we will also discuss them here. Now I would like to call the first member of my group, Mr. Saqib Khan. He will explain here in front of you the oxygen as well as the oxygenation and respiratory system. What are these things and what do they do in our body? He will explain here one by one. Thank you, Bilal. First of all, I will start in the name of Allah, who is the most gracious and most merciful. Assalamu alaikum, my dear friend and respectable teachers. My topic is oxygenation, and oxygenation, I will discuss oxygenation. First I will discuss oxygen. What is oxygen? Oxygen is the most necessary part of our human bodies and all living beings. ऑक्सीजन पाई कहाँ जाती है, इसके एटमॉस्फेयर क्या है, और ऑक्सीजन का फ़ायदा क्या है हमारी बॉडी के से, रिलेशनशिप क्या है, उसके बारे में आज हम बताएंगे। ऑक्सीजन है कलरलेस और टेस्टलेस। ये ऑक्सीजन जो होती है वो कलरलेस होती है, ना हम उसे देख सकते हैं, और ये टेस्टलेस होती है। अगर उसे हम चेक करें तो इसका जो है जायका कोई नहीं होता है, और इसका जो है हाई फ्लेमेबल है। अगर ये किसी चीज़ में हम इसको छोड़े या किसी कंटेनर में छोड़े तो हर जगह ये फैल जाती है डायरेक्ट। हाई फ्लेमेबल है, और एटमॉस्फेयर इसकी परसेंटेज कितनी है, 21% ये एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, और इसके ये एटॉमिक नंबर 8 पे आता है। अगर पीरियोडिक टेबल की बात की जाए तो ये नंबर 1 एलिमेंट है, सही है। ये काम क्या करते हैं, ये मेटाबॉलिज्म करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। हमारे जो है ना जितने भी बॉडी में जितने सेल से एनर्जी कहाँ मिलती है, ऑक्सीजन से मिलती है। अभी हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन होता क्या है? द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन ऑफ द बॉडी टिश्यू एंड सेल इज कॉल्ड ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन जैसे कि हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन जो है ना प्रोसेस होता है, और ऑक्सीजनेशन जो है ना डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी टिश्यू एंड सेल्स। ये ऑक्सीजन आती कैसे है हमारी बॉडी में, हमारे टिश्यू में कैसे आती है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। जब भी हम इनहेल करते
इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन जो है ना 21% है, तो ऑक्सीजन जाती है हमारे लेरिंग्स, फेरिंग्स और आखिर में आ जाती है लंग्स के साथ। जो भी प्रोसेस होते हैं बॉडी में वो एक ख़ास मैकेनिज़्म के तहत होते हैं, एक ख़ास प्रोसेस होते हैं। उसके लिए जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसे हार्ट चलाते हैं, जो ब्रेन सिस्टम नर्वस सिस्टम है वो हार्ट चलाते हैं। तो इसके लिए भी एक ऑर्गन की ज़रूरत होती है, वो है लंग्स इसे चलाती है और ये जो है ना पूरे बॉडी में पहुँचाती है। और जो भी बॉडी के पार्ट्स हमारे होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटिव से। अच्छा, ऑक्सीजन आ जाती है हमारे लंग्स में, तो लंग्स से फिर और दूसरे बॉडी के दूसरे पार्ट्स में कैसे जाती है, उसके लिए सर्कुलेटरी सिस्टम इसके साथ लिंक होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम से पल्मोनरी वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है हमारे लंग्स में, और वहाँ पर एक्सचेंजेस होते हैं, गैस के एक्सचेंजेस हो गए जो है ना फिर हार्ट में वो चले जाते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमारे ऑक्सीजन जो है ना होते हैं रेड ब्लड सेल में। रेड ब्लड सेल क्या करते हैं, सारी बॉडी में चलाते हैं। अगर हमारी बॉडीज़ के किसी भी पार्ट्स को जो है ना ऑक्सीजन की कमी हो तो वो जो है ना रैपिडली डैमेज हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। अगर ब्रेन के पास ऑक्सीजन 3 मिनट तक ना पहुंचे तो जो है ना ब्रेन हमारा नर्वस सिस्टम काम छोड़ देते हैं, और 5 मिनट तक ना चले जाए तो अनकॉन्शियस में हम चले जाते हैं। इस तरह हार्ट के पास कोरोनरी सिस्टम होते हैं जो है ना उसे ब्लड सप्लाई करते हैं। अगर उसमें हमें 2-3 मिनट तक हमारे ऑक्सीजन पल्मोनरी वेल्स जो है ना डैमेज हो जाए और ऑक्सीजन उससे तक ना पहुँचे तो जो है ना हमारा हार्ट भी काम करना छोड़ देता है। इस तरह अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, खुदा ना खास्ता किसी का पैर रेप्चर हो जाए या टिबिया विबिया जो भी रेफ्चर हो जाए ना, उसकी वजह जो है ना हमारे जो है ना वेंस आर्टरीज अगर डैमेज हो जाए तो आर्टरीज में ऑक्सीजन जो है ना आगे सप्लाई बंद हो जाते, तो हम एडिमा खिलाते हैं और पाम जो है ना हम अलग कर देते हैं, काट देते हैं, एडिमा बीमारी हो जाती है। अभी हम आते हैं ऑक्सीजनेशन जो है ना होता कैसे है, रेस्पिरेशन के तरफ आते हैं। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज इन द नेसेसरी टू सप्लाई सेल विद ऑक्सीजन एंड मेटाबॉलिज्म टू रिमूव द CO2। रेस्पिरेशन क्या होती है? रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि जो भी प्रोसेस होता है वो एक ख़ास मैकेनिज़्म के तहत होता है, सही है, ख़ास मैकेनिज़्म के तहत होता है। जो भी हम इनहेल कर रहे हैं उस पूरे प्रोसेस को चलाना, कैसे चलाना है, ऑक्सीजन को इनहेल करना है, कितने % ऑक्सीजन आ रही है, कितने % ऑक्सीजन बाहर जा रही है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना। अभी मैं आपको एक सिंपल एक मिसाल दे के समझाता हूँ, सही है। जब भी कोई वैकेंसी आती है एक कंपनी में तो वो जो है ना अपने एक स्टेटस रखते थे कि इस बंदे को जो हम लेंगे, सही है। अभी उन्होंने अनाउंस किया कि ग्रेजुएशन के बंदे को हम लेंगे, ये एपेबल है अप्लाई करने के लिए, सही है। बंदे बहुत सारे लोग आते हैं अप्लाई करते हैं, 21% लोग आते हैं जो है ना ग्रेजुएशन किए होते हैं वो अप्लाई करते हैं, सही है। 70% लोग आते हैं जिन्होंने BSc किए होते हैं, 14 ग्रेड के होते हैं, 14 क्लास पढ़ी होती है, वो भी अप्लाई करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने मैट्रिक की होती है या 12 की होती है तो वो भी अप्लाई करते हैं, जैसे कार्बन और दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट। जब हम इनहेल करते हैं 100% सांस हमारी जाती है लेरिंग्स, फेरिंग्स, फिर उसके बाद जो है ना ब्रोंकाई जो अलग अलग होती है तो उसमें चली जाती है। जितने % एल्वोलाई को ऑक्सीजन चाहिए होगा, जितनी वैकेंसियाँ अप्लाई की होगी कि 4 वैकेंसियाँ ना उसे, तो एक ब्रोंकाई एक एल्वोलाई जो है ना वो 4 बंदे को ले लेते हैं और छोड़ देते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन उन एल्वोलाई में रहती है। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, रेड ब्लड सेल जो है ना एरोसाइट से, तो जो है ना वो ऑक्सीजन को ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड उसके दे देते हैं। एक्सचेंजेज होते हैं, डिफ्यूजन होते हैं, तो एक्सचेंज होती है और जाती है। इथ्रोसाइड जो जाते हैं हमारे हार्ट में, हार्ट के ज़रिए पूरे बॉडी को, लंग्स, पूरे पार्ट्स में चले जाते हैं। तो इस तरह अभी ये प्रोसेस जो है ना रेस्पिरेशन, इसमें क्या करते हैं वो जो है ना ऑक्सीजन पहुंच जाती है हमारे ब्रेन तक, हमारे पार्ट तक, जितने भी वो काम कर रहे होते हैं, जितना वो एपेबल होगा। और किसी डिपार्टमेंट कंपनी जो है ना वो बंदे को भेज दे, 4 बंदों को एल्वोलाई, अगर हमारे एल्वोलाई से जो है ना 4 ऑक्सीजन गए हमारे हार्ट तक, अभी वो गए हमारे हार्ट के सेल तक, सही है। हार्ट के सेल में वो काम कर रहे होते, जितना उनका मैकेनिज्म हो, जितना वो सह सकते हैं वो काम कर रहे होते, फिर थक जाते हैं। फिर इस तरह ये प्रोसेस मुसलसल चलता रहता है। ऑक्सीजन आती है और कार्बन डाइऑक्साइड, फिर दोबारा इथ्रोसाइड्स आते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना काम थक जाते हैं तो उनसे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाते हैं। ग्रेजुएशन के स्टूडेंट अभी 12 पे आ गए, वो थक गए, काम उनका हो गया, सही है। तो जो है ना फिर इथ्रोसाइड्स आते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और ऑक्सीजन फिर उनको दे देता है। तो ये जो है ना प्रोसेस मुसलसल चलता रहता है, सही है। इसके बाद में जो है ना इसके जो फंक्शन होंगे, इनके जो फेसेस है रेस्पिरेशन के बारे में, वो मेरे दूसरे साथी बिलाल आएंगे, वो आपको समझाएंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू। Assalamu alaikum again. I really thank you to my member. He called me here to tell you something about the functions and also the phases of respiration. We have some functions where our respiration works, okay, and we have also some phases, and I will tell you here, I will discover all of them one by one in front of you. The first function which we have in our respiration system, it is called transport. Respiration helps to transport oxygen
to and from lungs. It means that whenever we inhale the oxygen or this this respiration helps us to transport oxygen to lungs and also from the lungs. So whatever we, for example, we are now breathing here, we are inhaling the air, okay, in inner side also, as Saqib discussed here about it, from nasal cavity and also larynx and pharynx, we inhale breathe from here. So this transportation helps us to inhale the air into lungs and also from the lungs. The second function of is that oxygenated veins blood. We have deoxygenated blood in our veins. So the respiration helps here us to make this deoxygenated blood oxygenated. How it helps? Let's see that what is written here. Respiration helps to transport oxygen to blood and make it oxygenated. As I told you now that suppose if I talk about my veins, I have deoxygenated blood in my veins. So whenever I take breathe or so this transport or this respiration helps me to make my veins to make deoxygenated blood oxygenated. The third one is work with cardiovascular system. Respiration also works with cardiovascular system, and the cardiovascular system also has here this vital role to make deoxygenated blood oxygenated. We will discuss about it ahead. Saeed will also tell you about the cardiovascular system ahead after completing this thing. I would like to read this slide here. Respiration helps with cardiovascular system to make blood oxygenated. As I told you now that cardiovascular system also has here a vital role to make deoxygenated blood oxygenated and transport oxygen and nutrients to body tissues. We have also body tissues, and every cell or every tissue needs oxygen for living, and every cell or every tissue alive. So if our oxygen and our air doesn't go towards our tissues, towards our cells, so they can die also. So that's why oxygen is necessary for every tissues and every alive things. The last function which I want to tell you here, remove carbon dioxide from lungs. We have also carbon dioxide in our lungs, which is very harmful for ourselves, which can damage our functions, which can damage the lungs. So it is very necessary to out the carbon dioxide from the lungs. So what is the role? What is the thing which helps us to transfer it out from the lungs? It is also there is also a function of respiration which has this vital role and plays this vital role here. Respiration helps to remove carbon dioxide from lungs, which is wasted, which is taken from harmful things which can damage our lungs. If our body or our cardiovascular system or respiration doesn't play this role to remove carbon dioxide from the lungs, so it can be harmful for us, or this carbon dioxide can damage ourselves. Now I would like to tell you the phases of respiration, the stages of respiration, the sides of respiration, the ankles of respiration from where we take respiration, and how many phases are there. There are 3 phases of respiration. Number 1 is ventilation, number 2 is respiration, and number 3 is perfusion. The ventilation has the work here, which is movement of air into and out of lungs. Whenever we move the air into lungs and out of lungs, it is called ventilation. We take air from the ventilation. It is the name of this phase, which helps us to to inhale breathe and also exhale breathe from the lungs. Respiration, as Saqib told you here, that respiration is a process of gas exchanges where the respiration changes the gases. Okay, gas changes between atmospheric air and alveoli. Atmospheric air, suppose we are sitting here or we are also facing this here, we are breathing. So this air is also going into our lungs as well as alveoli. So it has here this role to separate both of them and between both of them. And blood in the capillaries occur via diffusion. We also capillaries also have this role. And the perfusion, the last slide which I have here, blood delivering oxygen to the tissues.
the perfusion has this role to deliver the oxygen to the tissues. As I told you at the beginning of my speech, that every tissues or every cells needs oxygen. If our body doesn't give them oxygen, so it can be they can die, or they cannot be more in our bodies. So what is the delivering system, or from which thing we deliver the oxygen? It is called perfusion. Perfusion has this vital role that it deliver oxygen to the tissues. Now I would like to call one of my member who will tell you about the respiratory tract, from where we take oxygen, and also we will discuss something about the cardiovascular system. So I would like to call Saeed Khan. अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे टॉपिक का जो नेक्स्ट पार्ट है वो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है। कि रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है क्या चीज़, कि हम जो गैस एक्सेल और इनहेल करते हैं वो एक ट्रैक्ट के थ्रू होता है। वो ट्रैक्ट हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। सबसे पहले इसमें आता है नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी क्या है? हमारे नाक या मुंह से हम जो सांस लेते हैं, जिसके ज़रिए हम गैस को इनहेल इन करते हैं, एक्सेल आउट करते हैं, तो उसमें आते हैं नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी के बाद फेरिंग्स और लेरिंग्स आते हैं। फेरिंग्स और लेरिंग्स के बीच में एक ओपनिंग होती है जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं। उसके बाद लेरिंग्स के बाद क्या आता है? ट्रेकिया आता है। ट्रेकिया ये वाला आपका जो ये वाला पाइप है ना, इसको क्या कहते हैं? ट्रेकिया कहते हैं। ट्रेकिया से फिर क्या अराइज होते हैं? ब्रोंकाई अराइज होते हैं, ये ब्रोंकाई है। उसके बाद क्या अराइज होते हैं? ये छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स होते हैं। ब्रोंक्यूल्स के बाद यहाँ पर हमारे पास लंग्स भी आते हैं। लंग्स में क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस हो रहा होता है। अब राइट लंग्स से और लेफ्ट लंग्स से, राइट लंग्स के 3 लोब्स होते हैं, लेफ्ट लंग्स से क्या होते हैं? 2 लोब्स होते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर ब्रोंक्यूल्स अंदर चले गए, लंग्स में अराइज हो गए, उसके बाद यहाँ पर क्या होते हैं? छोटे सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तेलिनुमा स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें क्या होते हैं? गैसेस एक्सचेंज हो रही होते हैं। ऑक्सीजन जो है ब्लड पे जा रहे होते हैं, और ब्लड से जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड वो अल्विलाई में आके यहाँ से फिर इसी प्रोसेस के ज़रिए एक्सेल आउट होते हैं। ऑक्सीजन एक्सेल इन इसी ट्रैक के ज़रिए होते हैं, और एक्सेल आउट भी इसी के जो है ना वो होते हैं। मगर ये अगेंस्ट होता है इसके, कि यहाँ पर हमने इन कर दिया और फिर जब एक्सेल करेंगे तो हम क्या कर देंगे? आउट कर देंगे। तो ये हमारे क्या था? एक पूरा रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट था जिसके ज़रिए हम ऑक्सीजन इनहेल इन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल आउट करते हैं। उसके बाद हमारा जो इसका जो दूसरा मेन टॉपिक है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब कार्डियोवैस्कुलर, आप ये सोच रहे होंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम तो क्या है? अलग चीज़ है। यहाँ पर रिस्पायरेशन के साथ इसका लिंक क्या आ गया? ऑक्सीजनेशन के साथ इसका लिंक क्या होगा? इसका लिंक है इसके साथ, क्योंकि आपके बॉडी टिश्यूज़ को क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन चाहिए होता है। आपके हर बॉडी टिश्यूज़ को ऑक्सीजन चाहिए होता है। अब यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन कहाँ पर आ गया? लंग्स में आ गया। अब बॉडी टिश्यू तक जाएगा कैसे? आपके फ्लूइड के ज़रिए। फ्लूइड कौन सा होता है? ब्लड होता है। ब्लड पंप कहाँ पर होता है? आपके हार्ट से होता है। हार्ट आपका क्या है? पंपिंग ऑर्गन है। यहाँ पर ये क्या करता है? पंप करता है, आपका फ्लूइड पूरी बॉडी में जाता है, उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन आता है कैसे ब्लड के अंदर, और फिर ट्रांसफ़र कैसे होता है, ये हम इसमें देखेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। अब क्या होता है? अब क्या होते हैं? जैसे ही आपके पूरी बॉडी से वेंस के जरिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया राइट एट्रियम से, राइट एट्रियम से फिर कहाँ जाते हैं? राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से फिर कहाँ जाते हैं? हमने आपने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में पूरे सिस्टम पढ़ा है। मैं आपको एक रिव्यू देता हूँ कि ये किस तरीके से होते हैं। जैसे ही राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से क्या होता है? पल्मोनरी आर्टरीज अराइज होती है। पल्मोनरी आर्टरीज वाहिद आर्टरी से जिसमें क्या होते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। ये पल्मोनरी आर्टरीज कहाँ जाती है? लंग्स में जाती है। लंग्स से अल्विलाई के साथ अटैच होती है। अल्विलाई क्या करता है? जिस अल्विलाई के पास आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ब्लड में चले जाते हैं। ब्लड क्या है? डीऑक्सीनेटेड है। डीऑक्सीनेटेड से कार्बन डाइऑक्साइड आगे कहाँ पर? अल्विलाई में आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड अल्विलाई में आ गया, ऑक्सीजन ब्लड में चले गया। अब आपका ब्लड क्या हो गया? डायरेक्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब आपका ये ब्लड ये क्या करते हैं? पल्मोनरी वेंस के जरिए, जो 2 राइट लंग से अराइज होती है, 2 लेफ्ट लंग से अराइज होती है, ये कहाँ चली जाती है? आपके पल्मोनरी वेंस के जरिए लेफ्ट एट्रियम में चली जाती है। लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में चली जाती है। लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के जरिए पूरी बॉडी में क्या हो जाती है? ट्रांसफ़र हो जाती है। अब ये ऑक्सीजन बॉडी टिश्यूज तक कैसे जाती है वो मैं आपको बताऊंगा।
अब ऑक्सीजन बॉडी टिश्यूज तक ये वेसल्स के ज़रिए जाती है, जिसे कहते हैं ब्लड वेसल। अब ये ऑक्सीजन कहाँ पर मौजूद है? आपके आरबीसीज में मौजूद है, रेड ब्लड सेल में मौजूद है। ऑक्सीजन इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू टिश्यूज विया प्लाज्मा एंड आरबीसीज। आरबीसीज के ज़रिए ये जो सारे सिस्टम मैंने बताया ना, इसमें कौन सा ब्लड इन्वॉल्व होते हैं? आरबीसीज। इसमें हीमोग्लोबिन होते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब जैसे ओवरडोज से आर्टरीज अराइज हुई, आर्टरीज से क्या आती है? आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल से फिर कैपिलरीज, कैपिलरीज में क्या होती है? ऑक्सीजन आपकी बॉडी टिश्यूज़ में ट्रांसफ़र हो जाती है। कैपिलरीज ये पेनिट्रेट करती है आपके टिश्यूज़ के अंदर, ऑक्सीजन दे दी, जो वेस्ट मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है वो ले लिया, फिर कैपिलरीज से वेन्यूल्स में चली जाती है, वेन्यूल्स से वेंस में, और फिर सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के ज़रिए वापस से राइट एट्रियम में आपका ब्लड चला गया। और फिर यही प्रोसेस आपका बार बार चल रहा होता है। ये जो है साइमल्टेनियसली सारा प्रोसेस हो रहा होता है कि ऑक्सीजनेटेड हो गया, फिर लंग्स में, फिर लंग्स से वापस से हार्ट में, हार्ट ने पंप किया बॉडी टिश्यूज़ को, कैपिलरीज के ज़रिए ट्रांसफ़र हो गया ऑक्सीजन, और फिर आपका वापस से हार्ट में ब्लड आ गया डिस्क। ये सारा प्रोसेस आपका कार्डियोवेस्कुलर। तो इसके साथ लिंक क्या होता है कि ऑक्सीजन को लेना और फिर आपके बॉडी टिश्यूज़ को पहुँचाना एक प्रोसेस के ज़रिए होता है, जिसको कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। अब मैं हैदर को बुलाना चाहूँगा कि वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में फैक्टर अफेक्टिंग ऑक्सीजनेशन बताए कि कौन से फैक्टर है जो ऑक्सीजन को अफेक्ट कर सकते हैं, ऑक्सीजनेशन। अस्सलामु अलैकुम। फैक्टर अफेक्टिंग ऑक्सीजनेशन, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए देयर आर 5 फैक्टर, 5 फैक्टर होते हैं। सबसे पहले एज के बारे में हमें पता होना चाहिए। ऑक्सीजनेशन स्टेटस कैन बी इन्फ्लुएंस बाय एज। ऑक्सीजन रेट हमारे एज पर इन्फ्लुएंस करती है, एज पर इन्फ्लुएंस करती है। जैसे कि बच्चों के अलग रेस्पिरेटरी रेट होती है और एडल्ट के अलग रेस्पिरेटरी रेट होती है और ओल्ड के अलग रेस्पिरेटरी रेट होती है। मतलब कि बच्चों के ज़्यादा रेस्पिरेटरी रेट होती है और एडल्ट के नॉर्मल होती है, और ओल्ड के जो उसके रेस्पिरेटरी रेट जो है ज़्यादा होती है। ये इफ़ेक्ट करते हैं हमारे लंग्स पर। इसके बाद आते हैं इन्वायरमेंट पर। हीट, कोल्ड एंड एयर पोल्यूशन इफ़ेक्ट ऑक्सीजनेशन। मतलब कि जैसे कि यहाँ क्राउड बैठी है तो एक दो ग्रुप अंदर और आ जाए और हम विंडो बंद कर दे और डोर बंद कर दे, मतलब कि हमारी ऑक्सीजन जो है कम होती जाएगी। ऑक्सीजन हमारी कम होगी तो रेस्पिरेटरी रेट में जो है ना हमारी कमी होगी। इसके बाद है लाइफस्टाइल फैक्टर। लाइफस्टाइल मतलब कि फ़िज़िकल एक्सरसाइज हो गई, जिम वगैरह हो गई, और फुटबॉल जैसे कि हम एक्सरसाइज करते हैं, ज़्यादा ओवर नहीं करनी चाहिए। अगर ज़्यादा ओवर करेंगे तो हमारी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ती जाएंगी। एक्सरसाइज हमें कम करनी चाहिए। इसके बाद मैं फरहान को दावत दूंगा कि वो आए और मेडिकेशन के बारे में और स्ट्रेस के बारे में आपको समझाए। अस्सलामु अलैकुम। स्टार्ट इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशिएंट, द मोस्ट मर्सीफुल। जैसे कि हमारे इधर भाई ने आपके सामने 3 इफ़ेक्ट्स पढ़े, अभी चौथा वाला मेरा है मेडिकेशन। मेडिकेशन की वजह से हमारा डीप रिस्पिरेटरी रेट जो है ना वो कम हो जाता है। इसमें हमारे साथ जो है ना बहुत सारे दवाइयाँ मौजूद होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डाइज़ेपाम हो गया और नोटोफिन्स और मेट्रोफिन्स वगैरह। इसके बाद हमारे साथ आता है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस जो है ना हमारे नर्वस सिस्टम जो है स्टिमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे एपिनेफ्रिन हार्मोन जो है ना वो रिलीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा वो रिस्पिरेटरी रेट जो है ना बढ़ जाता है। इसके बाद मैं दावत देना चाहूँगा जाफ़र भाई को, ताकि वो आए और आपके सामने हाइपोक्सिया लैक्स ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। Today my topic is hypoxia. Hypoxia means lack of oxygen. Lack of oxygen. Hypoxia is a condition in which the body or a region of the body is deprived to adequate oxygen supply at the tissue level. Hypoxia क्या होता है? Lack of oxygen होता है। कैसे होता है? जो हमारे ब्लड होता है उससे टिश्यूज़ में नहीं जा पाता, कम जाता है, मतलब कि कम जाता है, उसको क्या कहते हैं हम? हाइपोक्सिया। हाइपो का मतलब है कम और पोक्सिया का मतलब है टिश्यूज़ में। जैसे जहाँ हमारे पास हाइपो आ गया तो कम और हाइपर आ गया तो ज़्यादा, और पोक्सिया जहाँ है तो यहाँ हमारे टिश्यूज़ की बात हो रही है, जहाँ मियाँ आ गया तो वहाँ हमारे ब्लड्स की बात होती है। तो नेक्स्ट हमें बताएं हाइपोक्सिया के केसेस, इसके कॉजेज़ कितने होते हैं? देयर आर 4 केसेस। फर्स्ट हमारे पास आते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव ऑफ एयरवे। ऑब्स्ट्रक्टिव ऑफ एयरवे, ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब कम होना, किसी चीज़ में रुकावट, ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब है रुकावट को।
रुकावट किस तरह से, जैसे हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होता है कि हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये होता है कि हमारे जैसे ट्रैकिया में कुछ भी रुकावट या कोई भी ज़ख्म वगैरह हो गया तो उससे जो हमारी सांस में रुकावट आती है उससे हम क्या कहते हैं, उस ऑब्स्ट्रक्टिव ऑफ एयरवे कहते हैं। देन हमारे पास आ जाए अ लैक ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। लैक का मतलब है कम, और एटमॉस्फेरिक मतलब माहौल के हिसाब से इस तरह के, जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे चलेगा तो हमारा ऑक्सीजन क्या होगा, कम मिलेगा, या हाई डिप्राइव पे चलेगा तो हमारा ऑक्सीजन क्या होगा, कम हमें मिलेगा। देन हमारे पास आता है कंडीशन अफेक्टिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम। कंडीशन पेशे आप लोग इन लोगों ने बता दी थी, एज, स्ट्रेस, एनवायरनमेंट एंड मेडिकेशंस। देन हमारे पास है चेस्ट और लंग ट्रॉमा। चेस्ट और लंग ट्रॉमा मतलब हमारे चेस्ट में किसी चीज़ की इन्फ्लामेशन होना या प्लोरेसी से हम कहते हैं, उसमें अगर चेस्ट में अगर पानी भर जाए तो उससे जो ऑक्सीजन की कमी होती है उसे हम क्या कहते हैं, चेस्ट और लंग ट्रॉमा कहते हैं। फिर हमारे पास के सेप्टम्स एंड साइन एंड सेप्टम्स आते हैं। साइन एंड सेप्टम्स हमारे पास क्या है, साइनोज होना। पेशेंट साइनोज हो जाता है, साइनोज के निशानी क्या है कि ब्लूइश हो जाते हैं, पेशेंट ब्लूइश हो जाए, आप देख सकते हैं उसके हाथ और होंठ जो है नीले पड़ जाते हैं बिल्कुल। और देन हमारे पास आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जिसे हम ऑर्थोपिनिया भी कहते हैं। ऑर्थोपिनिया में क्या होता है कि ब्रीथ जो है वो कम आती है, और सबसे ज़्यादा इसमें ऑर्थोपिनिया में सुपाइन पोजीशन में पेशेंट जो है वो बहुत ही कम पेशेंट को ब्रीथ आती है। और देन हमारे पास आते हैं टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया क्या होता है, टेकीकार्डिया हमारे पास हार्ट रेट जब हमारा इंक्रीज़ हो जाए मोर देन 100 तो उसे हम क्या कहते हैं, टेकीकार्डिया। तो टेकीकार्डिया में हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा तो रिस्पिरेटरी रेट भी इंक्रीज़ हो जाता है। हार्ट रेट तब इंक्रीज़ होता है जब हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, ऑक्सीजन कम पहुंचता है तो इस वजह से हमारा रिस्पिरेटरी रेट हार्ट रेट बढ़ जाता है, और हार्ट रेट बढ़ने से रिस्पिरेटरी रेट भी बढ़ जाता है, इसे हम टेकीकार्डिया कहते हैं। और मैं अभी नेक्स्ट देना चाहता हूँ मास्क को वाएँ और आपको इसके अल्टरनेटेड ब्रीथिंग पैटर्न के बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है अल्टरनेट ब्रीथिंग पैटर्न, इसमें हमारे पास सबसे पहले है डिस्पनिया। तो डिस्पनिया का मतलब क्या है, डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग। इसमें जो है पेशेंट को सांस लेने में मुश्किल होती है। डिस्पनिया की वजह से पेशेंट को ऑक्सीजन सही से नहीं मिल पाता, तो इससे पल्मोनरी कंजक्शन हो सकती है, क्योंकि डिस्पनिया की वजह से पेशेंट को ऑक्सीजन सही से नहीं मिल पाता, तो इसकी वजह से वाइटल साइन जो है इंक्रीज़ हो जाते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, रिस्पायरेटरी रेट, सही है, पल्स, तो ये इंक्रीज़ हो जाते हैं। एंजाइटी होगी, साइनोसिस पेशेंट को, साइनोसिस में जो है पेशेंट का कलर जो है वो चेंज होता है, ब्लूइश कलर हो जाता है, ब्लू कलर। इसको जो स्किन वगैरह है इसका कलर भी चेंज हो जाता है, डिस्कलरेशन हो जाते हैं, और बॉडी में जो है ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम हो जाता है। इसके बाद है प्रोक्सिमल न्यूक्लियोनल डिस्पनिया। इसमें हमारे पास क्या आता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आती है। सही है, 1 से 2 घंटे सोने के बाद जब आते हैं तो शॉर्टनेस ब्रीथ आती है। जब पेशेंट को अपर राइट पोजीशन में बिठाओगे तो रिस्पायरेटरी रेट जो है ना वो नॉर्मल हो सकती है। पेशेंट को अगर अपर राइट पोजीशन में बिठाओगे तो उसका जो रिस्पायरेटरी रेट है वो नॉर्मल हो सकती है। वजह से जो है ना पल्मोनरी कंजक्शन हो सकती है, क्योंकि वेंट्रिकल अपना काम जो है वो सही से नहीं करता और लंग्स में जो है फ्लूइड भर सकता है। इसके बाद है हाइपरकैप्निया, इंक्रीज वॉल्यूम विदाउट एन इंक्रीज। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से पल्मोनरी डिजीज़ हो सकती है। इसकी वजह से पल्मोनरी डिजीज़ हो सकती है, इंक्रीज ब्लड लेवल ऑफ CO2। इसकी अर्ली साइन में जो है रिस्पायरेटरी रेट पास हो जाता है, पल्स रेट भी पास हो जाता है, क्योंकि मेडोला को सिग्नल मिलता है कि CO2 का लेवल जो है वो बढ़ गया है, ठीक है। तो इसकी वजह से रिस्पायरेटरी भी तेज़ हो जाता है, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। अगर ये कंडीशन ज़्यादा देर तक रही तो पेशेंट को पेन अटैक भी हो सकता है। इसके बाद है हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन का मतलब क्या है, इसमें हाइपोक्सिया हो सकती है, मतलब सेरेब्रल में जो ऑक्सीजन का मकदार है वो कम हो जाता है और ब्लड में CO2 का लेवल भी डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे डिज़ाइनेस हो जाती है, पेशेंट को एंजाइटी होगी, चक्कर होगी, तो पेशेंट को बेचैनी महसूस होगी। इसके बाद मैं दावत देना चाहता हूँ यासीन को कि वो आगे एक्सप्लेन करें टेकीपीनिया, ब्रेडीपीनिया, ऑर्थोपीनिया के बारे में। यासीन आगे एक्सप्लेन करें। अस्सलाम वालेकुम। ऑर्थोपीनिया में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होती है। जब पेशेंट लेटा हो तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होती है, वाइटल कैपेसिटी कम हो जाती है और पल्मोनरी कंप्लायंसेस की वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होती है, जिसकी वजह से वेंट्रिकल से ज़्यादा मकदार में ब्लड पंप नहीं हो सकता। इसके बाद है टेकीपनिया। टेकीपनिया में पेशेंट का रिस्पायरी रेट 20 ब्रीथ पर मिनट से ज़्यादा हो जाते हैं। रिस्पायरी रेट ज़्यादा हो, एक्सरसाइज, हार्ट बीट और एंजाइटी की वजह से रिस्पायरी रेट ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से
एंजाइटी होती है और लीवर इनलार्ज हो जाता है। इसके बाद है ब्रेडिपनिया। ब्रेडिपनिया में पेशेंट का रिस्पायरी रेट 12 बीट पर मिनट से कम हो जाता है। रिस्पायरी रेट कम होने की वजह से न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होती है, इन्फेक्शन और पेन हो सकता है। इसके बाद है प्लेटिपनिया। प्लेटिपनिया में डिस्पिया हो सकती है जब पेशेंट अपराइट पोजीशन में हो, और जब पेशेंट लेट जाए तो रिस्पायरी रेट पीक हो जाता है, जिसकी वजह से लेफ्ट एट्रियल ट्यूमर और थ्रोम्बोसिस हो सकती है। इसके बाद मैं नवीद को बुलाना चाहता हूँ कि वो आप आके आपको असेसमेंट के बारे में बताएं। Assalamu alaikum. Today I am going to tell you about असेसमेंट। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट असेसमेंट कि असेसमेंट होती क्या है और हम ये करते किस तरीके से है। देखो, जब भी हमारे पास हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आता है, हम उसको देखकर या पूछकर जो डेटा कलेक्ट करते हैं, वो पेशेंट के करंट सिचुएशन के बारे में जो मालूमात हासिल करते हैं, वही हमारे पास असेसमेंट होती है। असेसमेंट के हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम ये करते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास इंस्पेक्शन होती है, दूसरे नंबर पे पल्पेशन होती है, तीसरे नंबर पे परकशन होती है और चौथे नंबर पे ऑस्कल्टेशन होती है। इंस्पेक्शन हमारे पास क्या होती है? इंस्पेक्शन में सबसे पहले हम पेशेंट के साइज़ और शेप को देखेंगे, लंग्स के साइज़ और शेप को देखेंगे। हम ये देखेंगे कि कहीं हमारा पेशेंट बायलिटरली सिमेट्रिकल तो नहीं है, क्या उसके जो लंग्स का साइज़ है दोनों तरफ बराबर है या कोई फ़र्क तो नहीं। इसके बाद ज़्यादा मूवमेंट ऑफ चेस्ट को देखेंगे। क्या मूवमेंट ऑफ चेस्ट में हम सबसे पहले पेशेंट के रेस्पिरेटरी रेट को देखेंगे कि हमारा पेशेंट जो रेस्पिरेशन कर रहा है, क्या रेस्पिरेटरी रेट उसका नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। उसके बाद हम लोग अपने पेशेंट उसमें रिदम को देखेंगे कि हमारा पेशेंट जो रेस्पिरेशन कर रहा है, क्या उसकी रिदम रेगुलर है या इरेगुलर है। उसके बाद हम लोग टाइप ऑफ ब्रीथ को देखेंगे कि हमारा पेशेंट जो सांस ले रहा है किस किस्म की सांस ले रहा है, नॉर्मल सांस ले रहा है या लेबर ब्रीथ ले रहा है। कहीं उसे सांस लेने में दुश्वारी तो नहीं हो रही, कहीं वो साइनोस तो नहीं हो रहा, एब्डोमिनो थोरेसिक ब्रीथ ले रहा है या थोरेको एब्डोमिनल ब्रीथ ले रहा है, यानी उस सांस लेते वक्त उसके लंग्स नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं या ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। इसके बाद हम अपने पेशेंट के चेस्ट एक्सपेंशन को देखेंगे कि हमारा पेशेंट जब सांस ले रहा है तो दोनों तरफ बराबर फूल रहे हैं या नहीं। इसके बाद हम लोग अपने पेशेंट की ट्रेकिया को देखेंगे कि हमारे पेशेंट का जो ट्रेकिया है, क्या वो बिल्कुल मिड लाइन में गया हुआ है या नहीं, किसी लेफ़्ट साइड या राइट साइड की तरफ झुका हुआ है। अगर ऐसा है तो इसको हम लोग ट्रेल साइन कहते हैं। इसके ये हमारे पास असेसमेंट में से कुछ पॉइंट्स थे। इसके बाद हम पल्पेशन की तरफ आते हैं। पल्पेशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने पेशेंट के चेस्ट के साइज़ और शेप को देखते हैं, लेकिन अपने हाथ लगाकर अपने हाथों से उसको महसूस करते हैं कि हमारे पेशेंट के लंग्स बराबर है या नहीं। उसके बाद हम लोग अपने पेशेंट को की ब्रीथ टाइप ऑफ ब्रीथ को देखेंगे। जब हमारा पेशेंट सांस लेगा तो अपने पेशेंट के चेस्ट पे इस तरीके से हम लोग हाथ रखेंगे चेस्ट के ऊपर और देखेंगे, उसको सांस लेने का बोलेंगे। जब हमारा पेशेंट सांस लेगा तो हम अपने ये फिंगर्स को नोट करेंगे। अगर हमारे फिंगर्स एक साथ एक जैसा फासला तय कर रहे हैं तो नॉर्मल है। हम लोग ये देखेंगे कि हमारा पेशेंट के सांस लेते वक्त क्या एक साइड का फासला ज़्यादा तो नहीं। ये पल्पेशन थी हमारे पास। इसके पास हम लोग परकशन पर आते हैं। परकशन में हम लोग क्या करते हैं कि अपने पेशेंट के चेस्ट पर इस तरह हाथ रख के पेशेंट के चेस्ट पर इस तरह से हाथ रखते हैं और अपने मिड फिंगर से उसको इस तरह से मारते हैं। हम लोग ये आवाज़ सुनते हैं कि हमारा पेशेंट जो लंग्स में से किस किस्म की जो प्रोड्यूस होने वाली साउंड है उसको हम लोग सुनते हैं। अगर लंग्स के अंदर पानी फ्लूइड वगैरह भरा हुआ है तो वो जो बनने वाली साउंड होगी वो हमारे पास डल साउंड कहलाएगी, डलनेस वाली साउंड होगी। और अगर हमारे पेशेंट के लंग्स नॉर्मल है, जो बनने वाली प्रोड्यूस होने वाली साउंड होगी वो हमारे पास रेजोनेंट साउंड कहलाएगी। इसके बाद हम लोग ऑस्कल्टेशन करेंगे। अपने पेशेंट के ऑस्कल्टेशन असल में होती क्या, देखो हम स्टेथोस्कोप के ज़रिए अपने पेशेंट की जो है ना एयर एंट्री और एग्जिट, जब हमारा पेशेंट सांस लेता है तो हम वो आवाज़ें सुनते हैं कि हमारा पेशेंट सांस किस तरह से ले रहा है, क्या कोई गड़गड़ाहट वगैरह तो नहीं हो रही सांस लेते वक्त। ये हमारे पास कुछ खास पॉइंट होते हैं, मैं आपको पोस्टीरियर व्यू से दिखाऊंगा। पहले हम लोग स्केपुला के ऊपर इस तरह से लगते हैं, राइट साइड से हम लोग शुरू करते हैं, फिर हम लेफ़्ट साइड पे आते हैं और वॉइस दोनों साइड की बनने वाली आवाज़ को हम लोग सुनते हैं कि फ़र्क है या नहीं दोनों। उसके बाद हम लोग नीचे के साइड पे आते हैं, स्केपुला के साइड पे बहुत सारे पैटर्न होते हैं, हम लोग एस पैटर्न के तहत करेंगे, ठीक है। उसके बाद राइट साइड पे जाएंगे, फिर तो नीचे जाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग लेफ़्ट साइड पे आएंगे। अभी हम लोग आपको शॉर्ट वीडियो दिखाएंगे ऑस्कल्टेशन के बारे में 1 मिनट की। उसके बाद हमारा ग्रुप लीडर सईद खान आके जो प्रेजेंटेशन हमने प्रेजेंट की उसके समराइज़ करेगा। थैंक यू। आपके सामने पेश किए। These are the some references from where we have taken our content. Now we will summarize our presentation, that what we have presented in front of you.
समराइजेशन में देखो हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने ऑक्सीजनेशन की डेफिनेशन देखी, उसके बाद हमने रिस्पायरेशन का देखा, उसके बाद हमने रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट देखा। रिस्पायरेशन में क्या देखा कि गैसेस एक्सचेंज, उसके बाद रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में क्या देखा कि गैसेस एक्सचेंज कौन से ट्रैक्ट के ज़रिए हो रही है। उसके बाद हमने यहाँ पर कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम एंड ब्लड वेसल देखा और उसके साथ फंक्शन ऑफ रिस्पायरेशन और फेजेस ऑफ रिस्पायरेशन भी देखी कि फंक्शन ऑफ रिस्पायरेशन क्या थे कि जो वेनस ब्लड है उसको ऑक्सीजनेट करता है, कार्डियोवेस्कुलर के साथ काम करता है, तो इसके फंक्शन देखे। फिर फेजेस में देखा, वेंटिलेशन देखी, परफशन देखी और रिस्पायरेशन देखी। उसके बाद कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम का पूरा फंक्शन देखा कि कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के साथ उसका जो लिंक है वो क्या है, ऑक्सीजन कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में देखी। उसके बाद हमने फैक्टर इफेक्टिंग ऑक्सीजनेशन देखे, एज देखा, मेडिकेशन देखी कि उसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं ऑक्सीजनेशन के ऊपर, स्ट्रेस हो गया, लाइफस्टाइल हो गया। उसके बाद हमने हाइपोक्सिया के बारे में पढ़ा कि लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज़ के बारे में और उसके साइन एंड सिम्टम देखे और कोजेज़ देखी कि उसकी कोजेज़ क्या थी, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या थे। और उसके बाद हमने फैक्टर दैट अल्टर ब्रीदिंग जैसे डिस्निया हो गया, टेकिपनिया हो गया, प्लेटिपनिया हो गया, ऑर्थोपनिया, तो ये सारे जो है फैक्टर्स हमने देखे। उसके बाद आपको नवीद भाई ने आपको असेसमेंट के बारे में बताया कि उन्होंने आपको सिर्फ ऑक्सीजनेशन की जो इफेक्ट होती है ऑक्सीजनेशन की, सिर्फ उसके असेसमेंट नहीं बताए। आपको जितने भी नर्सिंग असेसमेंट होते हैं उसके यही 4 पॉइंट होते हैं कि जो 4 पॉइंट होते हैं वो आपको आपके सामने रखे कि ये 4 पॉइंट होते हैं नर्सिंग असेसमेंट में। हर जगह ये आपके 4 पॉइंट ये काम आएंगे। तो हमने ये सारे जितने भी समराइजेशन है, ये सारे टॉपिक हमने क्या किया आपके सामने प्रेजेंट रखे। होप आप सबको समझ आ गई होगी। मैं अपने टीम को बुलाना चाहता हूँ कि वो इन फ्रंट पर आए और जो भी सवाल हो आपके सवाल का जवाब। First of all, we are very thankful to you and for your precious time you gave us, your precious time, and you also listened to us. And I hope that we hope that you have understood our topic which we have delivered here. Now we are ready to face your difficult questions as well as we are ready to answer your questions. But try to ask us. Yeah, we will try our best, and inshallah we will answer your questions.